Somewhere in the village of Mandla, a woman wakes before sunrise. She walks miles to get water, comes home, cooks food for her family, works the entire day in the field, again goes back home, cooks the food, and sleeps last. Her health is the last thing anyone, including her, thinks about. 200 kilometers away, in the city of Bhopal, a woman of same age. She wakes up at her convenience, goes to gym, checks her activities on her mobile app, books an appointment with a gynecologist. Two different paths, two women, one country, India. How do we build for both? And this is what this podcast is all about. And to start this journey, I couldn't have asked for a more grounded voice than today's guest, Dr. Rita Chauhan. She is the head of Department of Economics at St. Aloysius College, Jabalpur. She has led three major ICSSR projects on tribal women, rural livelihoods, and rural economy of Madhya Pradesh. She is also an author, an educator, and someone who has trained a generation of students in Jabalpur to think rigorously about India they are inheriting. And she sees rural India through a lens very few people use, not just as a social issue, but as an economic one. Namaskaram, ma'am. Thank you for joining us today. Thank you for inviting Krishna. Ma'am, you have spent nearly 2 decades studying rural Madhya Pradesh, 3 major CSR projects. What is that one truth about rural Madhya Pradesh that you have learned from this work that the rest of India would never understand? Krishna, basically, when I visited different villages of Madhya Pradesh, especially Mandla district and nearby villages of Jabalpur, then I realized there are certain things जो शायद हम दूर बैठे हुए नहीं समझ पाते हैं. जब आप उनसे जाकर इंटरेक्ट करते हैं, then you come to know कि the women in rural areas, especially in such district, they are such in a vulnerable condition. Sometimes it happens they are not aware about their own like small things. They are not aware about it. All time they are busy with their families or they are taking care of their children. So in the entire family, most of the time we see कि अपना ख्याल छोड़ के बाकी वो अपने सराउंडिंग जो उनकी पूरी दुनिया है उसका ख्याल रखने में वो इतना बिजी हो जाते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कहीं को इग्नोर होता है तो ये होते हैं. दे आर इक्वली पार्टिसिपेटिंग इन ब्रेड अर्निंग. लाइक अगर आप उनका रूरल इंडिया में के अंदर अगर आप देखो इन कंपैरिजन टू अर्बन एरियाज, द वर्क पार्टिसिपेशन रेट इज वेरी हाई इन रूरल एरियाज. सुबह से, जैसे अभी आपने कहा कि सुबह से उठ के वो अपने काम पर निकल जाते हैं, अपने घर का सारा कुछ देखने के बाद काम पर निकल जाते हैं, एंड देन शाम को जब थक कर आते हैं तो अगेन फैमिली को केयर करना है और सारी चीजें होती. सो दिस इज समथिंग जब हम ग्राउंड रियलिटीज को टच करते हैं और हम देखते हैं कि नहीं, समटाइम इट हैपेंस, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको एज अ ह्यूमन भी ट्रीट नहीं किया जा रहा है ना. और दिस इज समथिंग लाइक जो आपको काफी पेन देता है. काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि नहीं, दैट हैज टू बी चेंज्ड. करेक्ट, बहुत अच्छी बात कही आपने. बट मुझे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दिस इज नॉट द फेस ऑफ जस्ट द रूरल इंडिया, आई वुड से. Urban, maybe the transition has started, but still there are parts, even if we talk about our mothers, we come from urban backgrounds, even our mothers were like कि आप पूरे घर का ध्यान रख रहे हो. बिल्कुल. आप सुबह जल्दी उठते ही, मतलब फर्स्ट पर्सन टू वेक अप, द लास्ट पर्सन टू स्लीप, एंड इवन देन आपकी हेल्थ के लिए शायद आप पहली बार तो आप खुद ही ध्यान नहीं देते हो, आप उसको टरका दोगे, एंड देन इवन इफ यू टेल इट टू समबडी, उनको भी लगता है कि नहीं चलो ठीक है, पेन ही तो है ना, चला जाएगा. सो दिस प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट दैट वी लिमिट टू रूरल इंडिया, बट इट इज एट द लार्जर पर्सपेक्टिव. आई वुड से कि ये हर वुमेन, हर माई के पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ बन गया है. बिल्कुल बिल्कुल कृष्णा, जो आप कह रहे हो, लाइक बहुत पास से देखा उन चीजों को. If I talk about myself, so जो मेरी कॉलेज की टाइमिंग है, sometime it happens कि वो चाय का कप रखा हुआ है पर वो चाय ठंडी हो गई, उसको हम पी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो लाइफस्टाइल है और जो पूरा रूटीन है वो कुछ इस तरीके का होता है कि हम इतनी भागदौड़ कर रहे होते हैं कि वो जो हमारा, वो जिसको हम मी टाइम भी कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं हम स्किप कर देते हैं. अपनी केयर करने का जो टाइम होता है, अपने आप की तरफ देखने का, ध्यान देने का जो टाइम होता है, वो भी हम समवेयर स्किप कर देते हैं. डेफिनेटली. Okay. Moving ahead, your research has specifically looked at tribal women in MP. When you sit with a woman in Mandla or Dindori
and think of a woman the same age in Jabalpur city or Bhopal, what is that similarity about their lives, and what is one thing that is completely different? If we talk about the similarities, डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, अगर आप उनको कंपेयर करो तो ट्राइबल विमेन समटाइम वी फील दे आर मच मोर एम्पावर्ड देन दिस अर्बन जो सेगमेंट में हमारी फेमस है, बिकॉज जो डिसीजन मेकिंग में उनका जो पार्टिसिपेशन है वो अभी हम देख रहे हैं काफी हद तक बढ़ गया है. इट्स नॉट दैट कि अर्बन एरियाज में स्पेशली अगर हम देखें कि लिटरेट बट अनएम्प्लॉयड, तो ये जो सिनेरियो हमको देखने को मिलता है, जैसा हम लोग कभी बात भी करते हैं कि नहीं ठीक है आप तो रहने दो, अभी आपका व्यू नहीं पूछा जा रहा है, तो डिसीजन मेकिंग में इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन इनका होता नहीं. बट अर्बन एरियाज में जब हम रूरल एरियाज की अगर हम बात करें, स्पेशली अगर ट्राइबल एरियाज की हम बात करते हैं, तो विमेन्स आर इक्वली लाइक उनको बराबर एक हिस्सेदारी है डिसीजन मेकिंग में. अब वो बात अलग है कि फिर जो अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग होती है वो तो है ना, बट स्टिल वो अपना व्यू रख सकते हैं बिकॉज दे हैव इक्वल पार्टिसिपेशन इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ. सो by equal participation do we mean ki just because she is also the bread earner? yes. कि लिटरेसी को भी पीछे छोड़ दिया, अगर आप पैसे लेके आ रहे हो तो आपको वो एक ओहदा दिया जा रहा है कि हाँ आपकी बात को भी सुना जा रहा है. बिल्कुल, ये एक फैक्ट है, ये एक रियलिटी है विच एस. और जैसे मैंने कहा ना कि अलग अलग डायमेंशंस में हम अलग अलग चीजें देखते हैं. हम अर्बन एरियाज की अगर बात करें, लिटरेट फैमिलीज हैं बट दे हैव अ डिफरेंट परसेप्शन अबाउट द वुमेन, और उनका जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन हम देखते हैं, हमको वो डायमेंशन बिल्कुल अलग नजर आते हैं. हमको लगता जरूर है दे आर वेरी लिटरेट सो दे विल बी ओपन माइंडेड, बट रियलिटी कई बार हमको बिल्कुल अलग देखने को मिलती है. हाँ, अगर अर्बन एरियाज में हम बात करें कि द वुमेन हु आर सेल्फ डिपेंडेंट, हु इज वर्किंग, सो वहां पर हमको काफी सारी चीजों में हमको नजर आता है कि जो डिसीजन मेकिंग में इनका पार्टिसिपेशन है वो काफी स्ट्रांग होता है. और मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज सीन कि काफी सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जिसमें फैमिली जो इन्वॉल्वमेंट हमको देखने को मिलता है. मैम, आपने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ रूरल इंडिया, रूरल वुमेन के ऊपर लिखा है, तो कैन यू एक्सप्लेन द आइडिया इन एवरीडे लैंग्वेज हमारे दर्शकों के लिए, कि प्लेन सिंपल लैंग्वेज में हाउ डज अ वुमेन्स इकोनॉमिक स्ट्रेंथ चेंज द एंटायर हाउसहोल्ड एंड एंटायर विलेज. जैसे हमने अभी बात किया कि अगर वुमेन अर्न कर रही है तो उसको वो ओहदा दिया जा रहा है, बट अगर एक वुमेन उस स्टेज पे जाती है तो क्या उसके बदलाव से कृष्णा, लेट मी करेक्ट यू, वो ओहदा दिया नहीं जा रहा है. एक्चुअली ट्राइबल एरियाज में हमने देखा है महिलाओं ने वो ओहदा खुद अर्न कर लिया है, खुद अपनी मेहनत से. और जैसे हमने कहा ना, इक्वली चाहे वो इकोनॉमिक लाइफ हो, चाहे सोशल लाइफ हो, चाहे फैमिली लाइफ हो, एवरीवेयर वी कैन एक्सपीरियंस कि हाँ अब वो धीरे धीरे अपनी वो जगह खुद ब खुद लेती जा रही है. तो उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट आता है फैमिली के ऊपर वो हमको बहुत क्लियर नजर आता है. लाइक वी हैव सीन, लाइक हम अगर कुछ पिछले 10-15 सालों में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो कुछ स्टडीज है हमारी जो हमको बहुत क्लियरली दिखाती हैं कि स्पेशली गर्ल एजुकेशन को लेके जो परसेप्शन है दैट हैज बीन चेंज्ड. जो लाइवलीहुड पार्टिसिपेशन रेट है वो हम देख रहे हैं काफी तेजी के साथ बढ़ा हुआ है. और गवर्नमेंट रन स्कीम्स जो रही हैं उन्होंने भी अपना पार्ट काफी इफेक्टिवली जो हम देखते हैं प्ले किया है. सो जो जिस अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं, जिस तरीके की अप्रोच चाहे गवर्नमेंट स्कीम्स की रही हो, चाहे जो फैमिली अप्रोच रहा हो, उसका हमको एक जो अगर हम ब्रॉड लेवल पे देखें तो हमको उसका इम्पैक्ट काफी हद तक नजर आता है. गर्ल एजुकेशन है, जैसे ट्राइबल में अभी भी गर्ल एजुकेशन के लिए जैसे आपने बताया कि वो चीज चेंज हो रही है, बट रूरल इंडिया में हमने हाल में ही एक रिसर्च किया था जहाँ पे हमने देखा कि जो बच्चियां हैं 12th तक जो प्राइमरी एजुकेशन रहती है उनको वो दिया जाता है, बट उसके बाद जस्ट बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन द मेन इन द फैमिली की, इवन इफ इट्स अ ब्रदर और अ फादर, तो वो उनको लेके जाएगा. तो क्या यही सेम सिचुएशन हमको ट्राइबल्स में भी दिखते हैं, या फिर ट्राइबल्स में इट इज अ बिट बेटर एज कंपेयर टू द रूरल इंडिया? वी कैन नॉट से दैट इज बेटर देन द रूरल एरियाज, बट हाँ जैसे मैंने कहा ना कि काफी सारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो आर फोकसिंग ऑन ट्राइबल विमेन और ट्राइबल जो गर्ल चाइल्ड है उनके ऊपर काफी. जैसे अभी हम शहरों में देखते हैं कि बालिका आश्रम वगैरह, जो ट्राइबल जो लड़कियां हैं उनके लिए बालिका आश्रम वगैरह, तो ये रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं. सो इन केस इफ दे आर लाइक, जैसे अभी आप कह रहे हो कि डिपेंडेंसी होती है उनकी कि भाई या पिताजी उनको स्कूल तक लेके जा रहे हैं, तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जैसे ये बालिका आश्रम वगैरह होती है,
रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, तो ये बच्चे वहां पर अगर एडमिशन उनको दिला दिया जाए तो इनका फीस, इनका खाना, इनका रहना सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होता है. बट द ओनली थिंग दैट इज अवेयरनेस. सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस व्हेनेवर वी आर डूइंग फील्ड वर्क और वी आर लाइक उनको हम इंटरव्यू करते हैं, देन वी कम टू नो कि मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट अवेयर अबाउट द गवर्नमेंट रन schemes. And that is why the one initiative which has been taken by the Department of Economics of St. Aloysius College, and that is Earth Setu. तो Earth Setu के थ्रू हम यही करने की कोशिश करते हैं कि जो गवर्नमेंट रन स्कीम्स हैं वो जो टारगेटेड ग्रुप है हम वहां तक उनको पहुंचा सके, बिकॉज गवर्नमेंट अपना जो काम है वो कर रही है, लेकिन जब अवेयरनेस ही नहीं है, हाउ दे कैन अवेल ऑल दोज फैसिलिटीज और जो स्कीम्स का बेनिफिट है वो वहां तक नहीं पहुंच पाता. तो ये जो हमारे बच्चे जाते हैं ये उनको अवेयर कराते हैं अबाउट द डिफरेंट स्कीम्स. प्रोसेस में अगर उनको कोई लाइक बहुत ज्यादा अवेयरनेस होती नहीं, एजुकेशन होता नहीं, तो समटाइम दे फील कि प्रोसेसिंग में उनको काफी दिक्कत फील होती है. तो बच्चे उसमें भी उनका जो पूरा प्रोसेस है किसी पर्टिकुलर स्कीम के लिए एनरोल करने में, तो वो सारी भी मदद करते हैं. सो दैट इज वन सेगमेंट कि अगर हम उनको ठीक तरीके से अवेयर करा पाए कौन सी स्कीम्स के लिए वो एंटाइटल्ड है, किस तरीके से वो बेनिफिट, वेदर इट इज रिलेटेड टू लाइवलीहुड और एजुकेशन और एनीथिंग. सो दैट इज वन एस्पेक्ट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. गुड. आई थिंक बहुत अच्छा काम कर रही है, गवर्नमेंट भी कर रही है और आपकी संस्था भी कर रही है. आगे चलते हैं. मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ वुमेन्स हेल्थ एज अ मेडिकल इशू. एज एन इकोनॉमिस्ट, हाउ डू यू सी इट? व्हाट इज दैट रियल कॉस्ट टू अ फैमिली, टू अ डिस्ट्रिक्ट when its women are tired, anemic or unwell year after year? See, Krishna, in economics, we used to consider a concept which is known as health economics. तो ये जो health economics है, like हमारी जो productivity है, वो काफी हद तक ये सारा जो पूरा का पूरी चीजें हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड है. इफ यू आर नॉट वेल, अगर आप लगातार बीमार रहते हो तो जो आपकी प्रोडक्टिविटी होती है, इवन एवरेज प्रोडक्टिविटी है, वो भी डिक्लाइन होती है. सो इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर इनकम, और नॉट ओनली इनकम बट जो हम कहते हैं ना कि फैमिली भी काफी हद तक उससे अफेक्ट होती है. और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारी ओवरऑल अगर हम एक मैक्रो लेवल पे एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि डेफिनेटली इट अफेक्ट्स आवर इकोनॉमी एट लार्ज. तो वो अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके जो ये रूरल वुमेन है, नॉट ओनली रूरल वुमेन, आई मस्ट से कि एवरी वुमेन दे नीड इट. तो अगर वो अपने आप को स्वस्थ रखते हैं तो वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, एट लार्ज अगर हम देखें तो नेशनल लेवल पे भी इनका जो कंट्रीब्यूशन है इन द फॉर्म ऑफ जीडीपी, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्टिविटी. सो दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू लाइक. ये एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम अनफॉर्चुनेटली इंडिया में देखते हैं कि सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड एस्पेक्ट हमको नजर आता है, जिसपे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. बिल्कुल. हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब एक माँ या घर की महिला बीमार रहती है तो सब हर पड़ाव पर तो उसका प्रभाव पड़ता ही है, बट बच्चों पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है. बिल्कुल. अगर आपके छोटे बच्चे हैं और माँ ही स्वस्थ नहीं है तो आप ना अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रख पा रहे हो, ना ही अपने बच्चों का रख पा रहे हो. बिल्कुल, पूरी फैमिली अफेक्ट होती है. कृष्णा, व्हाट आई हैव सीन एज अ टीचर, मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव सीन आवर स्टूडेंट दे आर स्ट्रगलिंग. व्हाई? माँ की तबीयत खराब है और काफी लंबे समय से अगर माँ को इस तरीके के हेल्थ इश्यूज है तो सिर्फ एक बच्चा इफेक्ट नहीं होता, पूरी फैमिली इफेक्ट होती है. और जो मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं हम देखते हैं कि उनके ऊपर पूरा जो इम्पैक्ट आता है. और सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेटली जो चीज अभी हम नोटिस करते हैं, महिलाएं ही अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है. वो अपने आप को सबसे, जिसको हम कहते हैं ना कि एकदम किनारे पे, हाशिए पे अपने आप को खड़ा पाती हैं. उनकी पहली प्रायोरिटी उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनके रिलेटिव्स, सारी चीजें, और सबसे अंत में वो अपने आप को. बट अगर हम रियलिटी देखें तो जो पिलर है वो घर की वो महिला ही है ना. चाहे वो बच्चों के देखभाल की बात हो, चाहे वो फैमिली को केयर करने की बात हो, चाहे एज अ वर्किंग विमेन अपने वर्क स्पेस पे कंट्रीब्यूट करने की बात हो. सो विमेन हेल्थ इज समथिंग विच इज वेरी वेरी एसेंशियल और जिसके ऊपर वाकई बहुत सीरियसली फोकस करने की जरूरत है. स्पेशली अगर हम बात करें
तो रूरल एरियाज में ये वाकई बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात है। वी हैव सीन कि देयर आर मेनी वुमेन जो 103 फीवर है उसके बावजूद वो अपने काम पर लगी हुई है, बिकॉज ठीक है फीवर ही तो है, ठीक हो जाएगा, बट वो फीवर कब किसी ऐसी सीरियस बीमारी में कन्वर्ट हो जाए, अगर वो पूरी ट्रैकिंग नहीं होती है, अगर हम उसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो ऑब्वियसली वो कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीजें हैं जो बाद में जाके एक बड़ी समस्या का रूप ले सकती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम यही प्रश्न किसी से भी पूछते कि ये रूरल और अर्बन में आप किसी को बताओ, तो एक जेनरिक आंसर है कि हाँ रूरल में ही रहेगा। बट इस पे एक मेरा फॉलो क्वेश्चन ये है कि जब हमने रूरल एरिया का स्टडी किया और जब हमने अर्बन का किया, तो जो परेशानियां रूरल वुमेन को थी वही एग्जैक्ट सेम परेशानियां अर्बन को भी है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो, पीसीओएस पीसीओडी हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, दोनों ही जगह पे इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि अर्बन वुमेन प्रिविलेज्ड है, उसके पास सब एक्सेस है, उसके पास अवेयरनेस है, नॉलेज है, सब कुछ है। गांव के लोगों के पास तो वो नहीं है, जिसमें उनकी हालांकि कोई गलती नहीं है, बट फिर भी ये एक अंतर है। पर दोनों जगह ही हमने सेम चीज पाया कि जो बीमारियां उधर है वो यहाँ भी है। तो फिर अर्बन साइड पे अगर हम देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए दोनों साइड पे जैसे आपने कहा प्रॉब्लम सेम है, लेकिन उसका जो रूट कॉज है वो डिफरेंट है। हम अगर अर्बन एरियाज में देखते हैं तो वहाँ जो बेसिक कॉज है दैट इज लाइफस्टाइल। वो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई वो सारी चीजें हमको वहां पर नजर आती है। लेकिन अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो वहां पर न्यूट्रिशन और जो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फैसिलिटीज, ये एक मेजर कॉज है। अर्ली डायग्नोज नहीं हो पाती जस्ट बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि हेल्थ फैसिलिटीज उतनी डेवलप नहीं है। तो छोटी सी एक प्रॉब्लम जो अगर हम शुरू में ही डायग्नोज कर लें, जिसको हम आसानी से क्योर कर सकते हैं, कई बार वो बहुत बड़ी समस्या में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जब अनबेरेबल हो जाती है चीजें तब वो शहरों के अस्पताल तक पहुंच पाते हैं। पर शहरों की अगर हम बात करें, जो अर्बन वुमेन की अगर आप बात करो, तो वहां पर ज्यादातर समस्या इन हेल्थ फैसिलिटीज की नहीं है, एक्सेसिबिलिटी की नहीं है, प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल को लेकर। तो इनकी जो ज्यादातर टाइम हम प्रॉब्लम्स देखते हैं वो उनकी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई होती है, समय पे खाना ना खाना, और आजकल सॉरी टू से पर जो मोबाइल है और जो रील्स में लोग अपने 2-2 3-3 घंटे, वही टाइम अगर ये थोड़ा सा अपने हेल्थ को डिवोट कर दें, मेडिटेशन, छोटे छोटे एक्सरसाइजेस अगर ये करने, तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से कुछ चीजों को हम वापस रिवर्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से चाहे वो जैसे अभी हम सुनते हैं पीसीओडी और हार्मोनल इश्यूज है, अगर हम छोटे छोटे एक्सरसाइजेस थोड़ा सा समय अगर अपने आप को दे लें, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर लें, खान पान का हम थोड़ा सा ध्यान रख लें, तो ऑब्वियसली बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आसानी से रिवर्ट हो सकती हैं। हमने एजुकेशन सिस्टम को तो हमेशा ही क्वेश्चन किया है कि एजुकेशन सिस्टम हमारा अच्छा नहीं है, बट इस मुद्दे पे क्या हेल्थ केयर सिस्टम, जो हम अर्बन की बात कर रहे हैं, कि आज का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत ज्यादा एग्जिस्टिंग चीजों को बस कंटिन्यू सुने। अगर सपोज किसी को बीपी है या थायराइड है तो वो बस लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट का देता है, बट दे डू नॉट इवन ट्राई कि रूट कॉज क्या है। अगर मैं भी किसी डॉक्टर के पास जा रही हूँ तो बस देखता है अच्छा ये 2 चीज बीमारी है, अब उसके वो मैपिंग कर देते कि ए के लिए बी ले लो, बी के लिए सी ले लो, सी के लिए लो, बट उसका रूट कॉज क्या है, क्यों हो रहा है, वो रिपीटेशन क्यों हो रहा है, क्या वो उस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो आपका इस पे क्या? देखिए मुझे लगता है कि आयुर्वेद एक ऐसी चीज है, जैसे आपने कहा ना ए प्रॉब्लम के लिए हमने एक मेडिसिन ली, उससे बी प्रॉब्लम आया, फिर बी के लिए फिर हमने एक मेडिसिन लिया, उससे सी प्रॉब्लम आया। सो दैट इज रिकरिंग, वो लगातार, बिकॉज एज वी ऑल नोज कि मेडिसिन आपकी जो प्रॉब्लम है आपको लगता जरूर है कि क्योर कर लिया है, लेकिन उसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर। आयुर्वेद इज समथिंग जो जिसको वाकई अगर हम थोड़ा सा अगर हम इसको स्ट्रीमलाइन करें, इसके ऊपर अगर हम काम करें, तो वो जो हमारी प्रॉब्लम ए के लिए जो हम क्योर कर रहे हैं उससे कभी भी प्रॉब्लम बी की तरफ हम नहीं जाएंगे। सो दैट कुड बी अ सॉल्यूशन, जो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है कुछ बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज अंडरस्टूड, पर वो जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, स्पेशली अगर हम बीपी और शुगर और इन सब की बात करें, आयुर्वेद के पास जैसे हम कहीं आयुर्वेद के आंचल में बहुत सारी चीजें हैं इन सारी समस्याओं को अपने अंदर समेट लेने के लिए। हेल्थ और इन सब की हम बात कर रहे हैं, तो हमने आज ही डिस्कस किया था जहाँ पे हमने आपको बताया कि रूरल हेल्थ में हम एक स्मार्ट बैंड इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं जो कंटिन्यूअस रियल टाइम मॉनिटरिंग में उनकी हेल्प करेगा,
जिससे उन्हें भी, जो जैसे कि आपने भी बताया कि अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पा रहा है, अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है, तो अगर ऐसा कोई डिवाइस है, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है जो उन तक हम पहुंचा सके और जिसकी मदद से उनको भी एटलीस्ट अवेयरनेस हो पाए कि हाँ एक्चुअल में ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और उनको अभी ही अस्पताल या आशा वर्कर्स के पास जाने की जरूरत है, तो इस पूरे आइडिया पे आपका क्या थॉट है? आपको कितना लगता है कि हाँ ये फिजिबल है, या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इस पूरी जर्नी में? कृष्णा, when I come to know about this particular concept और ये जो माई का कॉन्सेप्ट अभी मुझे बताया गया और जब सारी चीजें मैंने समझा, तो मुझे लगता है कि they can contribute substantially। ये स्पेशली जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, उस एग्जिस्टिंग सिचुएशन में ये बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। स्पेशली जब मैंने कहा ना कि जब इसके सारे फीचर्स के बारे में मुझे बताया गया, काफी सारी समस्याएं हैं जो हम इसके थ्रू अर्ली जो डिटेक्शन है, और हाँ यहाँ पर डेफिनेटली हमको आशा वर्कर्स को भी इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा। इफ वी कुड लाइक हम सक्सेसफुली अगर हम ये कर पाए, तो मुझे लगता है कि रूरल एरियाज की जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने में हम काफी हद तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि वो जो छोटी छोटी तकलीफें होती हैं जिनकी तरफ वो महिलाएं कभी ध्यान ही नहीं देती हैं, तो ये जो बैंड के थ्रू जो हम बहुत आसानी से जिसको हम डिटेक्ट कर पाएंगे, उनको हम बार बार हम उनको इन्फॉर्म नोटिफिकेशंस भेज पाएंगे कि आपको ये समस्या है, आप यूं कर लें। तो सिर्फ उनको अवेयरनेस नहीं बल्कि वो क्योर के तरफ भी हम लेकर जा सकते हैं, और वो जो काफी सारी समस्याएं हैं जिनको हम अर्ली स्टेज पे ही बहुत आसानी से मुझे लगता है कि हम क्योर कर पाएंगे। हमने आशा वर्कर की बात छेड़ी यहाँ पर, तो एक जो महिला रहती है रूरल वुमेन की, उससे सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पे होता है? अपनी आशा दीदी पर, या अपने पति पर, बच्चों पर, या फिर एक मेडिकल प्रोफेशनल पर? डिपेंड्स कि लाइक कहीं कहीं पर आपने देखा होगा आशा वर्कर्स के साथ ये जो रूरल वुमेन होती हैं, दे हैव अ वेरी नाइस बॉन्डिंग, क्योंकि वो उनमें से उनके बीच में से ही एक होती है। तो ऑब्वियसली जो ट्रस्ट है, अब फिर वो डिपेंड करता है कि किस तरह के इश्यूज को लेकर आप बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसे कुछ छोटे मोटे इश्यूज हैं, लाइक जैसे हम गायनिक रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं और ये सारी चीजें, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर तरीके से आशा वर्कर्स पे काफी हद तक उनके ऊपर रिलाय कर पाती हैं। और अगर इन सारी चीजों के साथ हम प्रॉपरली अगर हम उनको ट्रेन कर दें आशा वर्कर्स को, तो मुझे लगता है कि काफी सारी समस्याओं का सोल्यूशन तो हम यहीं के यहीं उनको दे देंगे। क्योंकि जैसे हमने पहले भी कहा कि ट्रस्ट उनको बहुत आसानी से उनके ऊपर, क्योंकि उनके बीच का ही कोई इंसान होता है। और आशा वर्कर्स का जो रोल जो मैंने ज्यादातर देखा है, वो एक सहेली की तरह वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो दैट इज समथिंग देयर। हाँ, फिर अब कुछ बहुत सीवियर चीजें होती हैं, देन ऑब्वियसली मैंने कहा सिनेरियो पर डिपेंड करता है। कुछ बहुत सीवियर चीजें हैं तो फिर डेफिनेटली आप डॉक्टर की तरफ फिर हम मुड़ते हैं। जैसे हम बैंड के बारे में बात कर रहे थे अभी, अगर हम अडॉप्शन की बात करें, क्योंकि ये बहुत टेक्नोलॉजी रिलेटेड रहेगा, तो अर्बन में तो इसका पेनिट्रेशन आसानी से हो जाता है, बट वहीं अगर हम अर्बन इंडिया, रूरल इंडिया की तरफ देखें, तो आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, या फिर क्या वो उतना एक्सेप्टेबल रहेंगी? जैसे कि हमको पता है कि वो उसके मन में कुछ डाउट आ सकता है कि अरे ये क्या मुझे दे दिया गया है, क्योंकि उसको शायद अवेयरनेस तो हम दे देंगे, बट उस चीज का एक्सेप्टेंस आने में समय जा सकता है। तो व्हाट इज योर व्यू पॉइंट कि हाउ रेडी वुड शी बी कि आई विल अडॉप्ट सच अ थिंग? See, that will totally depend on the kind of awareness we are giving. Like जब हम इसको उनके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे, तो पहले तो हमें उनको पूरी तरह से कन्विंस करो, बिकॉज ऑब्वियसली ये भी इंटरनेट और इन सारी चीजों से और ये सारे रूमर्स से बहुत ज्यादा जुड़े होते कि कोई आएगा फिर हमसे इंफॉर्मेशन ले रहा है, हमको कोई बैंड पहना रहा है, तो कहीं इससे कुछ और मतलब ऐसी चीजें, तो ऑब्वियसली दे विल हैव डाउट्स। और अगर हम जितनी इफेक्टिवली और जितनी एफिशिएंटली अगर हम उनके डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे, तो वो उतनी, और फिर कहते हैं ना कि वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, वो चेन जुड़ती जाती है। तो अगर हम कुछ लोगों को भी गांव के अंदर कन्विंस कर पाए, हम अपना ट्रस्ट डेवलप कर पाए, तो मुझे लगता है बहुत आसानी से, क्योंकि अगर 2-4 को भी वो देखेंगे कि इसका बेनिफिट हो रहा है उनको, तो डेफिनेटली दिस इज समथिंग वो बहुत इजीली उसको अडॉप्ट करेंगे। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, जो एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस सारे सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए उनके लिए तो ये वरदान साबित होगा।
अब मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अभी गांव में हर उम्र की महिलाएं होती है, बच्चा भी रहती है 20 से कम की, मिड एज की भी रहती है और फिर एजेड वुमेन भी रहती है। तो स्लोली जो 17 to 25 की एज की है, बिकॉज उनका इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है, वो थोड़ी सी अवेयर भी है, तो उनको इसके बेनिफिट्स मिलते हैं और फिर उसके बाद वो घर में ही वो एक लहर ला सकती है कि हर महिलाओं को ये मिल रहा है और वो उसका एक जिम्मेदारी लेके मैं अपनी माँ, अपनी दादी सबका ध्यान रखता हूँ। सो ऑब्वियसली बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि सबसे पहले हमको टारगेट करना पड़ेगा ये जो आप जिस एज ग्रुप की बात कर रहे हो। एट द सेम टाइम वी हैव टू फाइंड आउट द पीपल हु कैन इजीली, जो जिनको हम साइंटिफिकली अपनी चीजों को समझा सके, और जब उनकी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, बीइंग एजुकेटेड, उस पूरी लाइक जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी के बीच में जब कुछ पढ़े लिखे या समझदार लोग जब उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बारे में उनको ठीक तरीके से समझा पाएंगे, बिकॉज दे शुड बी आवर फर्स्ट टारगेट। और जब हम उस फर्स्ट टारगेट को ठीक तरीके से कन्विंस कर पाएंगे कि हम ये उन्हीं के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, देन डेफिनेटली फिर मुझे नहीं लगता कि उनके मन में किसी तरह का कोई शक, कोई डाउट या कुछ इस तरह के सवाल होंगे। फिर मुझे लगता है कि फिर हमें उनके पास तक नहीं जाना पड़ेगा। वो जो आपने कहा ना, एक बार वो जो लहर शुरू होती है फिर वो सब अपने आप ही जुड़ते जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। थोड़ा सा अब हेल्थ को साइड में रखे हम आपके काम की तरफ आते हैं। आपका पूरा ही आपने पूरी अपनी लाइफ रूरल इकोनॉमी और बेसिकली मध्य प्रदेश में दिया है। तो एनी स्पेसिफिक रीजन व्हाई यू हैव बीन स्पेसिफिक टू दैट स्टेट? कुछ आपका पर्सनल लगाव है, ऐसा कुछ? दोनों ही चीजें कह सकते हैं। एक तो पर्सनल लगाव, बीइंग फ्रॉम मध्य प्रदेश, और कहते हैं ना कि फिर उस पूरी जगह से जिस सराउंडिंग में आप पले बड़े हैं, जब आप वो सारी चीजें देखते हैं, जब वो सारा, क्योंकि आपने बहुत पास से वो चीजें देखी हुई होती हैं, तो आप वो चीज़ों को महसूस कर पाते हो, आप उन चीज़ों के साथ बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाते हो। और जितनी भी स्टडी मैंने की और जितनी भी सारी चीज़ें देखी, हम चाहे हम सॉरी टू से, पर हम जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, है ना, कि हमने विमेंस के लिए वहाँ सीट रिजर्व कर दी और उससे विमेन का एम्पावरमेंट हो जाएगा, नॉट एट ऑल। मैंने तो बहुत ज़्यादा उसका इम्पेक्ट नहीं देखा। हाँ, पर जहाँ पर भी हमने उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुआ है, लाइक जब जहाँ पर भी हमने देखा कि वो वर्कफोर्स के साथ जुड़ी हैं, जब उन्होंने अर्न करना शुरू किया है, तो धीरे धीरे अब उनकी जो कंडीशन है वो खुद ब खुद सुधरती गई, उस परिवार के अंदर भी, उस समाज के अंदर भी और उस गांव के अंदर भी। सो दिस इज समथिंग, जब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते हैं, जब तक आप उस फैमिली के फाइनेंशियल बर्डन्स को अपने कंधों पर उठाना शुरू नहीं करते हैं, तब तक किसी भी तरीके के कोई जो एफर्ट्स है, मुझे नहीं लगता उतने ज़्यादा वो हेल्पफुल हो सकते हैं या उतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। सो दिस इज समथिंग। और इसी वजह से जो ज़्यादातर टाइम जो रिसर्चर्स वगैरह आप जो देखोगे, तो मेरा फोकस रूरल लाइवलीहुड की तरफ था, और फिर बाद में हमने उसको सस्टेनेबल रूरल लाइवलीहुड और इन सारी चीज़ों के साथ जोड़ा, बिकॉज दिस इज समथिंग जहाँ से एक्चुअल एम्पावरमेंट आना शुरू होता है। वो जो हम बात करते हैं आज, है ना, इक्वालिटी की, इक्विटी की और दुनिया भर की सारी चीजों की, एवरीथिंग विल हैपन इफ हम उनको फाइनेंशियली डिपेंडेंट बनाएं। आई थिंक उससे वुमेन का भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है और उसको एक रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट होता है, बिकॉज़ नाउ शी हैज अ से इन एवरीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट 20 इयर्स में आपने जितना भी वर्क किया है मैम, तो देयर हैज बीन सर्टेन चेंजेस कि जब स्टार्ट किया तब रूरल वुमेन हेल्थ में कुछ एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट, या फिर ट्राइबल्स हो या रूरल इंडिया की जितनी भी फीमेल्स है, उनका एक नजरिया रहेगा अपने हेल्थ को देखने के लिए, समाज को देखने का। और आज उसमें क्या डिफरेंस आया है? देखिए, जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे समझ में आता है, या जितने बार भी मैं इन एरियाज में जाकर मैंने जब इनके साथ बात की है और जब भी यहाँ पर काम किया है, तो हम जरूर कहते हैं कि इंटरनेट वहाँ पर पहुँचा है तो अपने साथ कुछ तबाही लेकर गया है, बट एट द सेम टाइम काफ़ी सारी चीज़ें जिसको हम वरदान की तरह भी देख सकते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स जिनके बारे में दे वर नॉट अवेयर अबाउट, बट अब धीरे धीरे इंटरनेट और सारी चीज़ों के थ्रू जब वो चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो वो जो एक अवेयरनेस है अभी हमको दिखता है कि
उन एरियाज में अब धीरे धीरे वो सारी चीजें आने लगी हैं। हालांकि आपका जो मार्केट है वो भी बहुत तेजी के साथ रूरल एरियाज तक पहुंच रहा है, तो वो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स है जिनकी वजह से वो उनको अवेयर कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ये जो पूरा जो सिनेरियो हम देख रहे हैं कि जो कनेक्टिविटी है रूरल एरियाज की अर्बन एरियाज के साथ जिस स्पीड से बढ़ी है, उसका जो इम्पैक्ट है वो हमको साफ तौर पर गाँव में भी नजर आ रहा है ना। दे आर वो जो छोटी छोटी सी चीजें हैं उसकी तरफ ध्यान देना उन्होंने भी शुरू किया है, थोड़ा सा अपने तरफ ध्यान देना शुरू किया है। और जो हम कहते हैं ना कि डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ लाइफ जो कुछ ही चीजों तक सीमित होके थी, अब वो डिफरेंट डायमेंशन ऑफ लाइफ को कंसीडर करना शुरू किया, उसको टच करना इन्होंने शुरू किया है। बहुत अच्छी बात है। तो हमने पिछले 20 साल की बात करी, हम आगे के आने वाले 20 साल की बात करते हैं कि आज से नेक्स्ट 20 ईयर्स में आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो उसी एरिया में वर्क कर रहे हैं, तो आप क्या एक ऐसा बदलाव देखना चाहती है कि जो आज से लेके नेक्स्ट 10-20 ईयर्स में रूरल वुमेन के एरिया में सस्टेनेबल लाइवलीहुड के तौर पर आए? देखिए, मेरा तो मतलब जिसको कहते हैं ना कि मुझे मैं हमेशा प्रे करती हूँ कि 2 फील्ड के ऊपर बहुत अच्छा काम हो जाना चाहिए। एक एजुकेशन, रूरल एरियाज को अगर आपको वाकई डेवलप करना है तो आपके बड़े बड़े पैकेजेस और रूरल डेवलपमेंट के जो आपके बड़े बड़े दावे हैं वो सब अपनी तरफ ठीक है, लेकिन अगर आपको वाकई रूरल एरियाज को डेवलप करना है, आपको वाकई उसको विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है, उस रूरल एरिया को अर्बन एरियाज के साथ कनेक्ट करना है, तो वो जो कनेक्टिंग लाइन है, वो जो कनेक्टिंग ब्रिज है, मुझे लगता है वो हेल्थ और एजुकेशन, ये 2 डायमेंशंस ऐसे हैं। क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर जब आप काम करोगे, डेफिनेटली जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट उसी के साथ जुड़ी हुई कड़ी है। तो हेल्थ, एजुकेशन और उसके साथ साथ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, उनको लाइवलीहुड की जो हम बात कर रहे हैं, अगर हम 2-3 डायमेंशंस के ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली आने वाले समय में जिस तरह का ग्रामीण भारत हम देखना चाहते हैं वो डेफिनेटली हमको देखने में आएगा। हमने हेल्थ केयर की बात करी, शिक्षा की बात करी और हमने स्वास्थ्य की बात करी, बट एक और इम्पोर्टेंट कड़ी है जो वुमेन इन जनरल को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है और रूरल में भी शायद उसका कुछ अंश होगा। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं सुरक्षा की, प्रिवेसी। जैसे आपने कहा कि आशा दीदी के साथ वो अपनी दिल की बात कह सकती है, उसे शेयर कर सकती है, बट क्या हम जब एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जाते हैं तो क्या वो प्रिवेसी का ध्यान रखना जरूरी है? श्री कृष्णा, अगर हम आज की डेट में बात करें तो चाहे वो रूरल एरियाज हो चाहे अर्बन एरियाज हो, women if they are very conscious about anything, that is privacy. Obviously whenever they are adopting any gadget or any kind of like कुछ भी इस तरीके की टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे सामने आता है वो आता है privacy का, कि हम जिससे अपने मन की बात कह रहे हैं वो बात वहां से कहीं और तो नहीं पहुंच जाएगी। और जो आज का हमारा सबसे बड़ा इशू हम देख भी रहे हैं कि हमारे जो प्राइवेट डाटा होता है वो भी कितनी आसानी से इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जा रहा है, तो उसका तो इशू है ऑब्वियसली। और जैसे अभी आपने पूछा था कि अगर हम ये बैंड पहनाते हैं तो उसको लेके कैसे इश्यूज तो नहीं होंगे, इश्यूज बाकी तो कोई नहीं, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू हेल्प देम, तो वो तो बिल्कुल इसको अडॉप्ट करना चाहेंगे। पर जो दिमाग में सवाल आएगा वो सवाल सबसे पहला यही आएगा कि इससे जो भी मेरा पर्सनल डेटा है, जो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो कहीं और ना पहुंच जाए। तो वो हमेशा से एक बड़ा सवाल रहा है। देयर इज एनी मतलब टेक्नोलॉजी के फॉर्म में अगर हम कुछ ऐसा कर पाए कि जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मेरा डाटा है, वो मेरे अलावा या जो भी इसको ट्रैक कर रहा है उसके अलावा और कहीं ना पहुंचे, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। वो बहुत आसानी से ऐसी टेक्निक को गले लगाने को तैयार डेफिनेटली रहेंगे। शायद यही रीजन था कि हमने इस बात को थोड़ा ज्यादा गौर किया था, क्योंकि एज अ वुमेन मैं भी कभी अपनी पर्सनल चीजें, ऑफ कोर्स रिलेशनशिप है, हस्बैंड है, फादर है, सब है, इवन मदर है, बट कुछ चीजें हैं जो मैं मुझसे बाहर नहीं जाने देना चाहती हूँ और इसीलिए हमने हमारे माई बैंड में प्रिवेसी का बहुत ख्याल रखा है। उसका सारा डेटा उसके पास ही रहता है, कुछ भी डिवाइस उसके खुद के मोबाइल फोन के बाहर नहीं जाता है। तो शायद ये एक मुहिम है जो हमने स्टार्ट की है, क्योंकि सेफ्टी प्रिवेसी आज के टाइम पे सारा डेटा सब कुछ जा रहा है, प्रिवेसी की कोई डेफिनेशन नहीं बची है आज के टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। तो आशा है कि ये प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचेगा और उनको समझेगा कि हम जिस उद्देश्य से इसको बाहर लेके जा रहे हैं वो सिर्फ
उसकी हेल्प करने के लिए, उसके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, और वो खुद को जान पाए, उसके लिए है। हमें उसके डेटा से कुछ नहीं बिल्कुल, अगर हम ये बात जो हमारे टारगेटेड ग्रुप है उन तक हम अगर जी। आसानी से हम उनको कन्विंस कर सके इस बात के लिए, ये बात हम उन्हें समझा सके कि उनकी जो जानकारी है वो बिल्कुल भी उनके अलावा कहीं और नहीं जानी है, then definitely this technology is going to help them immensely. मैम, हमने रूरल की बहुत बात करी है। हमने एक ये प्रश्न भी किया था कि अर्बन और रूरल में सिमिलर बीमारियां होती हैं। थोड़ा सा अर्बन की तरफ रुख मोड़ते हैं और ऐसा देखते हैं कि अर्बन में जैसे लाइफस्टाइल के इश्यूज होते हैं, आपने बताए हैं, हार्मोनल भी इश्यूज होते हैं, तो हम उन तक क्या मैसेज दे सकते हैं, या हम उनको किस तरीके का अवेयरनेस बता सकते हैं कि छोटी छोटी चीजें अगर वो करें जिससे उनके स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा बदलाव आ सकते हैं, तो उस पर आपका क्या सुझाव है? देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि ज्यादातर जो अवेयर महिलाएं हैं वो स्मार्ट वॉचेस वगैरह यूज कर रही हैं सो दैट दे कैन इजीली ट्रैक उन कितना चले हैं, कितना कैलोरी बर्न हो रहा है, सो दे आर कॉन्शियस अबाउट ऑल दोज थिंग्स। पर ये जो स्मार्ट वॉचेस हैं उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, वो हर एक चीज ज्यादातर चीजें कवर नहीं करती। सो इफ देयर इज एनीथिंग, जैसा कि अब ये बैंड की हम बात कर रहे हैं, माई का जो कॉन्सेप्ट है, अगर इसको हम सही तरीके से, ठीक तरीके से, चाहे वो रूरल एरियाज हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द काइंड ऑफ एरिया वेयर, जोग्राफिकल एरिया के अलावा, सो दैट शुड बी, जिसको कहते हैं ना कि हर महिला का जो एक श्रृंगार की हम बात करें, अगर इसको महिला अपने श्रृंगार के रूप में अडॉप्ट कर ले, है ना, हाथों में हम चूड़ियां पहनते हैं, वैसे ही एक एसेंशियल पार्ट हो जाए कि हर महिला अगर अपने शरीर में ये धारण कर लेती है, तो मुझे लगता है काफी सारी जो बीमारियां हैं, काफी सारी जो प्रॉब्लम्स है, बहुत आसानी से हम उसको बिफोर टाइम ट्रैक कर सकते हैं और इजीली हम उसके क्योर की तरफ जा सकते हैं। जैसे आपने बात छेड़ी कि बहुत सारे बैंड्स हैं जो एग्जिस्टिंग अभी यूज भी कर रही है, ऑफ कोर्स वो कॉन्शियस हो गई है, बट उनमें हार्मोनल ट्रैकिंग, पीसीओएस पीसीओडी जो बहुत कॉमन हो गया है, अर्बन में तो बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसका कारण क्या हो सकता है, या हम किस चीज को मिस कर रहे हैं? क्योंकि अर्बन में जैसे हमने बात की कि एक्सेसिबिलिटी का इशू नहीं है, अगर मुझे कुछ ये खाना है या वो खाना है, अगर तो ना तो पैसे की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है और ना ही एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम है, तो फिर ये हार्मोनल इश्यूज इतने ज्यादा क्यों सरफेस हो रहे हैं? जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे ये समझ में आता है कि जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो काफी हद तक कम हो गई है। इवन बच्चों की अगर हम बात करें, हमें याद आता है कि हमारे समय पे ज्यादातर जो हमारे खेलने का समय होता वो घर के बाहर बीतता था, पर अब क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम देखते हैं बच्चे घरों में अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप, अपनी टीवी और इन सारी चीजों में ही ज्यादा, जो भी गेम भी खेल रहे हैं तो वो बैठे बैठे, तो ये जो फिजिकल एक्टिविटीज में लगातार हम कमी देखते आ रहे हैं, तो मुझे लगता है इसका एक बहुत बड़ा, और समटाइम इट हैपेंस कि बीइंग अ वर्किंग वुमेन, हमको कई बार ये देखने को मिलता है कि हम लगातार एक जगह पर ही बैठे हुए हैं, हमारी फिजिकल जो मूवमेंट्स हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी मुझे लगता है कि इस तरीके के जो हार्मोनल चेंजेस हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल है, उसमें मल्टीपल कंपोनेंट ऐड होते हैं, बहुत मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं जो उसका एक एसेंशियल पार्ट होते हैं। तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि हम ना उनको समय दे पाते हैं, ना हम ठीक तरीके से उनको ट्रैक कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से छोटी छोटी समस्याएं भी धीरे धीरे रिकरिंग होती जाती हैं और इस तरीके के इश्यूज को लेकर आती है, इन इश्यूज के फॉर्म में इवॉल्व बाद में हमको होते हुए नजर आती है। तो दिस इज समथिंग कि अगर हम अर्ली टाइम ऑन, हम समय के पहले अगर ये सारी चीजों को हम ट्रैक कर लें कि कब किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं और उनके लिए हमको क्या क्योर लेने की जरूरत है, तो अगर ये टाइमली सारी चीजें हो जाए, तो मुझे लगता है कि जो हम बार बार डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हैं जिसमें हम फाइनेंशियली भी ड्रेन हो रहे हैं, हमारा टाइम भी जा रहा है, तो वो सारी जो समस्याएं हैं काफी हद तक मुझे लगता है सॉल्व होंगी। इसी पे मुझे एक बात याद आ रही है, मैंने कुछ दिनों पहले एक रिसर्च पेपर पढ़ा था जहाँ पे उसमें ऐसा लिखा था कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, और इसका एक कारण जो रिसर्च में पाया गया है वो है अडल्ट्रेटेड फूड। तो उस पे आपका क्या थॉट है? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। ये लाइफस्टाइल का जो हिस्सा है, ये उसी के लिए बहुत जल्दी में है, हम बहुत जल्दबाजी में, तो वो जो सिस्टमैटिक जिस तरीके से हमारा जो किचन पहले होता था, अभी वो चीजें हमें नजर नहीं आ रही। ज्यादातर रेडीमेड चीजें हैं, इंस्टेंट प्रोसेस्ड फूड है, हम उनकी तरफ ज्यादा आजकल
झुकते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो साइंस भी कहता है कि हमारी बॉडी के लिए वो चीजें अच्छी नहीं है। पर क्योंकि लाइफस्टाइल ही ऐसी भागदौड़ वाला जीवन है, तो हम ये जो शॉर्टकट्स अपनाते हैं वो शॉर्टकट्स लॉन्ग टर्म में जाकर हमको डेफिनेटली काफी हद तक हार्म करते हैं। मुझे लगता है जो समय हम डॉक्टर के चक्कर काटने में लगा दें, अगर उसमें से आधा समय भी हम अपने स्वास्थ्य और किचन में सही खाना, सही उसका चुनाव करना और सही से पकाने के ऊपर ध्यान दें, तो हमें ना तो पैसे से जाना पड़ेगा और ना ही समय से जाना। बिल्कुल सही, क्योंकि कहते हैं ना कि ज्यादातर बीमारियों का जो क्योर है वो हमारे किचन में ही है। तो अगर हम किचन को हम ठीक तरीके से अगर हम ध्यान दे पाए, हम क्या भोजन ग्रहण कर रहे हैं, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज वो कहते हैं ना कि जो आपका भोजन है वो मल्टीपल चीजों के साथ कनेक्टेड है, तो आपका जो पूरा जीवन है कहीं ना कहीं वो सारी चीजें, तो किचन के तरफ हम क्या खा रहे हैं, किस तरह की चीजें खा रहे हैं और कब खा रहे हैं, इन सब का तो डेफिनेटली हमारे ऊपर काफी है। वैसी बात हुई, जैसा अन्न वैसा मन, बिल्कुल जैसा बिल्कुल मन वैसा तन। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आशा करते हैं कि ऐसा ही होगा। अब अंत में बस एक आपसे कि जितनी भी महिलाएं हमारा ये पॉडकास्ट देखेंगी, उनके लिए आपका एक क्या मैसेज? सभी के लिए सिर्फ एक मैसेज कि बीइंग अ वुमेन, आप परिवार के केंद्र में हैं, और परिवार का केंद्र होना यानी परिवार की नींव है, और नींव सशक्त होगी तभी पूरा परिवार, जिसको हम कहते हैं ना, उसका जो स्ट्रक्चर है, जो पूरा उसका हम आगे जो उसकी कल्पना कर रहे हैं और जो उसका वर्तमान है, अगर वाकई आपको उसको सशक्त बनाना है तो पहले महिला को खुद सशक्त होना पड़ेगा। हर डायमेंशंस में उसको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, अपनी डिपेंडेंसी को जितना हो सके उतना रिड्यूस करना होगा। तो पहले अपना ध्यान दीजिए, परिवार का ध्यान दीजिए, और अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर आप काम करना शुरू करिए। बाकी सारी चीजें मुझे लगता है कि बड़े बड़े झंडे लेकर हमको निकलने की जरूरत नहीं, ये छोटे छोटे स्टेप्स है, अगर हम वाकई इसके ऊपर काम करें तो हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियां सभी सशक्त होंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपकी सारी बातें और जितना भी आपने हमें इंसाइट दिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जब आप जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप दो चार बातें कहती हैं तो सुनने वालों पर भी वही प्रभाव पड़ता है कि बिकॉज ये एक्सपीरियंस से आ रहा है, ये कहीं से नहीं आ रहा है। तो आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कृष्णा, थैंक यू।